Hey dear all, a very good morning to all of you. How are you today? Hope all are very good. So dear all, can you tell me what is the date today? What is the date today? This is 8th October 2021 today. Yes, and which day? Which day is today? This is Friday. Friday. After Friday, it will come Saturday. And yesterday was Thursday. Yes, and today is Friday. Tomorrow will be Saturday. Day after tomorrow, it will be Sunday. And then it will come Monday again. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. Then again it will be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and today is Friday. And it will come again and again like a cycle. Okay. So dear all, let's start our day. Okay, in the beginning of the day, you all know what we do? We do morning prayer. So let's start our new prayer. You all know what is our new prayer? Okay, if you all know, that is very good. If you don't know, listen me carefully. Okay, so let's start morning prayer. For morning prayer, we have to stand in attention position and join your hand, and let's start the prayer. Father, we thank thee for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care, and all that makes the day so fair. Help us to do the thing we should, to be to others kind and good, in all we do in work or play, to grow more loving every day. Yes dear, you all have to remember this prayer. So once again, Father, we thank thee for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care, and all that make the world so fair. Help us to do the thing we should, to be to others kind and good, and all we do in work or play, to grow more loving every day. Yes dear all, this was our morning prayer. After morning prayer, what will we do? We will do morning pledge. So, to start morning pledge, we have to stand in attention position and take out your right hand and stand in attention position. So let's start morning pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To all my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity along lies my happiness. Thank you. Hey dear all, let's start हिंदी शब्द, हिंदी पाठ्य पुस्तक में से हिंदी शब्द हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके,
ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा। यहाँ पर एक नज़र मार लेते हैं। दिए गए चित्रों का सही अक्षर से मिलान कीजिए। दिए गए चित्र मतलब ये पिक्चर आप लोगों को दे रखी है, दिस पिक्चर। इन पिक्चर से आपको ये लेटर्स जो हिंदी के वर्ण दे रखे हैं ना, वर्ण मीन्स अक्षर, अक्षरों से आपको इन पिक्चर को रिकग्नाइज करके इनका मिलाना है। इनके ये क्या है, आप अ से अनार आ से हम पढ़ चुके हैं, तो वही ये है ई, बड़ी ई से ईख। तो ये हमने यहाँ पे इसको मैच कर दिया। ऐसे आप लोगों को मिलाना है। अब आप लोगों को सारा ये देखना है कि ये क्या क्या है, इनको रिकग्नाइज आप लोग कीजिए और इनको मैच कर दीजिए। अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, बॉक्स में लिखे वर्ण को गोलों में लिखे समान वर्ण से मिलाइए। ओके, वर्ण मतलब अक्षर, ठीक है। तो बॉक्स में लिखे, ये बॉक्स है, बॉक्स में कुछ लिखा है, यहाँ पे दे रखे हैं 2 बॉक्स, उसमें कोई वर्ण लिखा हुआ है, अक्षर लिखा हुआ है। फिर वर्ण को गोलों में, ये सर्कल है, इनको गोला बोलते हैं, गोलों में लिखे समान वर्ण से मिलाइए। अच्छा, इसके जैसा कौन कौन है उससे मिलाइए। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई आपको कि ये जैसे कि ज है, तो ज देखिए ये भी ज है, ये भी ज है और ये भी ज है, तो इनने इसको मिला दिया इस तरह से लाइन खींचकर। आपको सेम इट इज़ एज इट इज़, आपको ये जैसे ड है, अब आप ढूंढो इसके जैसा कौन सा है और मिलाओ, ठीक है। आप लोगों को खुद मिलाना है। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर पे आइए। नीचे बाईं ओर लिखे वर्ण को दाईं ओर के वर्णों में खोजकर उसको गोल घेरिए। गोल घेरिए मतलब सर्कल बनाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ये अ दिया ना, अ भ श ध, ये दे रखा है। अब हमको क्या करना है कि इस तरफ जो वर्ण लिखा हुआ है ना, दाईं ओर के वर्णों में खोजकर, इस तरफ के बाईं मतलब लेफ़्ट साइड में जो भी दे रखा है उसको राइट साइड में के वर्णों में खोजकर उसको गोला बनाओ। मतलब इसके जैसा जो भी आपको इनमें से दिख रहा है उस पर आप लोगों को सर्कल बनाना है। तो ये तो आप बहुत इजी है, ये तो आप लोग कर लेंगे, है ना। औ कहाँ है, ये रहा, ये एग्जाम्पल दे दिया है। अब आप लोग इनके जैसे ही ढूंढ के बना लो, है ना, कर सकते हैं। दैट इज़ टू ईजी फॉर यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। ही इज सेइंग, पढ़ो, इसको पढ़ो, आप लोगों को इसकी रीडिंग करनी है। ये पढ़िए भाई आप, ये क्या है, घ, ये क, ये ब, ये ई, ये अंग, ये प, ये ऋषि, ये श, ये स। ओके, ये र है, इसको र पढ़ते हैं। ओके, र, श, स, ड़, श, न, ओ, त। तो ऐसे मत पढ़े। अभी तक अपन हम लोगों ने कैसे पढ़ा है, अनार का, या अ से अनार, आ से आम। तो ऐसे अब हम लोग पढ़ना भूल जाएं और अब हम लोग सिर्फ कैसे पढ़ें, घ, क, ब, ई, ग, प, र, श, स, ण, श, न, ओ, त, ल, उ, ए, व, ख, ङ, च, अ, फ, ग, ह, ऐ, म, भ, श, ड़, क्ष, य, उ, औ, थ, य, ज, ड, ढ, ए, ध, र, अह, आ, ढ, झ, छ, ट, द, ठ, ई, त्र। ओके, ऐसे आप लोग पढ़िएगा। अब खाली स्थान में वर्णमाला के अनुसार वर्ण भरिए। वर्णमाला माने जो अनाराम हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके हिसाब से आपको वर्ण भरना है। वर्ण माने अक्षर। ओके, तो आप लोगों को इस तरीके से, जैसे अ
आ ई उ ए ओके, ऐसे आप लोगों को भरना है। उसके बाद यहाँ पे ऋषि आ जाएगा, ऋषि ए ओ अम अह क ख ग घ, यहाँ तक ग तक आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। उसको आप लोग खुद करिएगा ये। अब यहाँ देखिए नंबर 6 पर, गोलों में लिखे वर्ण को बॉक्सों में लिख दिए गए लिखे शब्दों के समान वर्ण से मिलाइए। गोलों में लिखे वर्ण को, ये गोले में लिखा है, ये सर्कल में लिखा है तो गोला हो गया। गोलों में लिखे वर्ण को बॉक्स में, बॉक्स जैसा क्या दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल बने हैं ना, ये बॉक्स है, ठीक है, इनको बॉक्स बोलेंगे, बॉक्स की शेप में है ना रेक्टेंगल में, हाँ। तो गोलों में लिखे वर्ण को बॉक्सों में लिखे शब्द में, अब देखिए जब भी मैंने बताया था कोई दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है ना। तो ये जो दो वर्ण हैं ये मिल गए, इसके एक ये फ में एक और को मिलाया तो ल को मिलाया तो फ ल बन गया, है ना। फ में फिर न को मिलाया तो फ ण बन गया। अब फ में फिर स फ ल को मिलाया तो स फ ल बन गया। अब फ में फिर से फ ल क को मिलाया, इन तीनों को जब मिला के लिख लिया साथ में तो एक शब्द बन गया। तो शब्द क्या होता है, जिससे कोई मीनिंग निकल रहा हो, जिसका कोई मतलब निकल रहा हो। ऐसे नहीं कुछ भी मिला दिया, जैसे ये ल और फ को मिला दिया तो फ इधर लिख लिया और ल इधर लफ, वो तो कुछ नहीं होता है, उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। जब हम उसको पढ़ रहे हो ना, जैसे फल, अब आप लोगों को सबको पता है फल क्या होता है, फ्रूट होता है, खाने की चीज़ होती है, पता है ना। तो किसी भी दो वर्णों को, दो अक्षरों को जब हम मिलाएं, दो या दो से ज़्यादा किसी भी को वर्ण को हम जब मिलाएं तो उससे कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि कुछ मतलब निकले, तब वो शब्द कहला देता है, ठीक है। उसको फिर शब्द बोलते हैं, वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वर्ड या शब्द एक ही होता है, तो वो बोलते हैं। तो जैसे फ को ल से मिला दिया तो फल, फ को ण से मिलाया फण, फ को फ में स और ल लिया तो स फ ल सफल। अब फ में ल और क और ले लिया तो फ ल क फलक, ठीक है। तो इस तरह से मिलाने पर कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए, शब्द बन गए, तो इनको हम बोलते हैं शब्द, ठीक है। जो भी उनका मीनिंग निकलेगा, लेकिन मीनिंग ऐसा होना चाहिए जो हमें समझ में आए, ठीक है। तो अब जैसे ये ख है तो ख में ल तो खल, खल एक चीज़ होती है जो कूटने की होती है, ठीक है। शंख है, शंख मतलब बजाने का, सबके घर में होगा शंख बजाने का, या फिर सबने देखा भी होगा टीवी पे बजाते हुए शंख, ठीक है। अब खजूर, खजूर एक फ्रूट का नाम है, खजूर। खरगोश, खरगोश एक एनिमल का नाम है, सबको पता है, रैबिट जो होता है खरगोश, है ना। तो ये जो है मीनिंगफुल वर्ड है। अब इसमें क्या करना था, समान, गोलों में लिखे वर्ण को बॉक्सों में लिखे शब्दों में समान वर्ण से मिलाइए। समान वर्ण मीन्स आपको यहाँ देख, जैसे ये फ है तो फण, तो फण, फ कहाँ है इसमें, फ ये रहा, यहाँ पे मिला दिया। अब फल, फल कहाँ है, ये है फल, ठीक है। फल में फ ल क, तो फलक में फ कहाँ है, ये है फ, ये वाला है, ठीक है। अब सफल, सफल में फ कहाँ है, ये रहा फ। ऐसे ही इन शब्दों में से जिसके कुछ मतलब निकल रहे हैं, ऐसे शब्दों में से आप अपना एक अक्षर ढूंढिए। जैसे ख निकल रहा है, ख कहाँ है, ख ये रहा, यहाँ पे ख कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे ख कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे ख कहाँ है, ये रहा। इस तरह से आपको सारे जो ये शब्द दे रखे हैं ना, इन सब में न कहाँ है, यहाँ पर ये रहा न, यहाँ पर न कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर न कहाँ है, ये रहा, और यहाँ पे न कहाँ है, ये रहा। तो आप लोगों को इसमें अपने सिमिलर वर्ड से, लेटर से मिलाना है इनको। आई होप आप लोग आज ये सब करेंगे, ठीक है।